So now chemical equilibrium is study of reversible reaction. Okay? Study of reversible reaction. What are reversible reactions? Reversible reactions are reactions which proceed in both directions. मतलब अगर कोई एक जनरल रिएक्शन A times A plus B times B going to C times C plus D times D. So when A and B react to form C and D, we call that reaction as forward reaction. And when C and D react to form A and B, we call that reaction is backward reaction. Okay. So chemical equilibrium will be a study of reversible reaction. तो इसमें हमें देखो करना क्या है, बहुत सिंपल वे में ऐसे करते हैं. सपोज आई टेक एग्जांपल. Suppose I take this reaction N2 plus 3H2 going to 2NH3 and I mix 10 moles of nitrogen and 30 moles of hydrogen. And I want to find out how many moles of ammonia will I get finally. Okay. Now, if we were doing this problem by mole concept, we would say that final moles will be 20. But 20 is the answer if we assume that this is the irreversible reaction. If this is a reversible reaction, then final moles we will never get at 20. Final moles of ammonia will definitely be less than 20. So how much less than 20? मतलब फाइनल मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 19 कितने हैं? 20 से कम होंगे, लेकिन कितने हैं वो निकालना इस चैप्टर में हमारा एम. ओके. So the aim या the approach of this chapter is to do stoichiometry on reversible reaction. In mole concept, we did stoichiometry assuming every reaction to be irreversible. Now we will do stoichiometry of reversible reaction. ठीक है? So suppose ऐसी यही वाले एग्जाम्पल को ऐसे समझ. तो मान लो ये रिएक्शन लिखा हुआ है हम लोगों ने N2 plus 3H2 goes to 2NH3 और टाइम t equal to 0 पे we put 10 moles nitrogen, 30 moles hydrogen, 0 moles ammonia starting में. अब after some time we come and observe, let's say at t equal to 1 hour we come and we find that in container there are 7 moles nitrogen, 21 moles hydrogen, 6 mole ammonia. Correct? At t equal to 2 I observe 5 mole
15 mole 10 mole. At T equal to 3 I observe 4 mole 12 mole 12. At T equal to 4 I observe 4 12 12. At T equal to 5 we observe 4 12 12 and so on. So now what we will say that this reaction has achieved equilibrium at T equal to 3. तो क्या हुआ है T equal to 3 पे? Reaction has not stopped. At T equal to 3 जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. मतलब पर सेकेंड जितने मोल्स अमोनिया बन रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन से उतने ही मोल्स अमोनिया डिसोसिएट हो रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, एंड दिस वी कॉल एज इक्विलिब्रियम. बोलो सर. हाँ. तो अभी ये आफ्टर 3 सेकेंड्स इसने इक्विलिब्रियम अप्रोच कर लिया. हाँ. इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स होंगे और सर जो इक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब क्या होगा? मतलब कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की क्या? मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ सर. भाई देखो, हर मिनट हर सेकेंड में कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे. यस सर. और कुछ अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगी. कुछ अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएंगे. अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना. फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है. यस सर. अब तुमने पहले घंटे में देखा कि अमोनिया के मोल्स बढ़ रहे हैं. यस सर. तो 6 हुए, करेक्ट. मतलब फर्स्ट आवर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से ज्यादा है. ओके. यस सर. लेकिन T इक्वल टू 3 पे क्या हुआ है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गया. ओके. तो यही अब लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. Once equilibrium has been achieved, moles of all reactants and products will become constant with respect to time. ठीक है. सर आप बस पीडीएफ पे दिखा सकते हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेने का है. स्क्रीनशॉट मैं भेज ही रहा हूँ ना क्लास के बाद, उसके लिए क्यों वेदांत लोग. बोलो आर्यन. सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था. And not only mole but all
measurable properties like pressure, density, etc. All measurable properties will become constant with respect to time. Okay. And another important point, chemical equilibrium is dynamic in nature. मतलब रिएक्शन रुकता नहीं है, reaction continuously keeps on going. It is a dynamic equilibrium. It is not a static equilibrium. T equal to 3 पे ऐसा नहीं हुआ है कि रिएक्शन होना बंद हो गया है. T equal to 3 पे क्या हुआ है? फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, दोनों सेम रेट से हो रहे हैं, इसलिए हम कुछ चेंज नहीं देख पा रहे. Is this much clear? Should we move forward? बोलो नीरज. हेलो सर. हाँ. सर आपने बोला कि रिएक्शन डायनामिक और कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, पर ये हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? लाइक रेट से मैं मतलब कांस्टेंट हो गए मोल्स, वो तो एक बार पता चल जाएगा, बट ये कैसे पता चलेगा कि आगे पीछे होता ही जा रहा है? देखो, अगर T इक्वल टू 3 पे हो सकता है या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक है, ठीक है? हाँ सर. अब अगर T इक्वल टू 3 पे मैं अमोनिया को थोड़ा निकाल लूं, हाँ, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन रुक चुका था, तो अगर मैंने 12 से निकाल के 10 कर लिया तो अब 10 ही रहना चाहिए. बराबर. रिएक्शन अब हो नहीं रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इसको 12 से कम करके 10 करेंगे तो वापस और रिएक्शन आगे चल के इसको 12 कर देगा. अच्छा. अच्छा. हाँ. डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके सर. बोलो मोक्ष. So sir, at chemical equilibrium, delta G of the reaction will be 0. थर्मो लाइन बाद में. Okay. This is application of thermodynamics. And अभी हम लोगों ने थर्मो में बस याद है क्या किया था? एट इक्विलिब्रियम Delta G is 0, sir. डेल्टा जी इज 0. ठीक है? Yes, sir. लेकिन इस बार हम लोग अभी जब इसमें लाएंगे तो और बहुत ढंग से क्लैरिटी होगी. अभी Okay, sir. after a few classes we will bring in thermo. Okay, sir. आयुष. सर केमिकल इक्विलिब्रियम में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसमें थर्ड और फोर्थ फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. भाई अगर सब मोल कांस्टेंट हो गए तो सारी प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, डेंसिटी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा. यस सर. हाँ. हम मोल्स मेजर थोड़ी कर पाते हैं, हम मेजर तो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ही करेंगे ना. यस सर. नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली. और डायनामिक होता है मतलब रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है. ओके सर, थैंक यू. वन. आर्यन. यस सर. जैसे अभी आपने कहा था कि मोल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. डायरेक्टली मोल्स कैसे निकालोगे? गैस फेज रिएक्शन चल रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कितने मोल्स है कंटेनर के अंदर? प्रेशर मेजर करोगे ना. यस सर, प्रेशर मेजर करेंगे. पीवीज एंड आरटी से मोल्स निकालोगे ना, तो मोल्स की डायरेक्ट मेजरमेंट थोड़ी होती है. ओके ओके. मोल इज मेजर्ड ईदर बाय प्रेशर और बाय वॉल्यूम. इस तरह से मेजर करते हैं ना मोल्स को. यस सर, समझ गया मैं. हेलो सर. हाँ. सर आप वो डायनेमिक और स्टैटिक का एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट पॉइंट? डायनामिक मतलब रिएक्शन चलता जा रहा है, रुका नहीं.
ओके, और वो अच्छा हम देखेंगे कि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता हाँ तो इक्विलिब्रियम आने के बाद में कुछ भी डिस्टरबेंस करता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा रिएक्शन तो रुक चुका था। ओके। तो सर अभी जो आपने लिखा था T3 पे वैसे हो रहा था वो क्या था? और हाँ? डायनेमिक सर, तो ये जो हमने 4 12 12 वाला एग्जांपल लिया है सर, उसमें डायनेमिक बोलोगे कि स्टैटिक बोलेंगे? डायनामिक है। अच्छा फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से चल रहे हैं। हाँ ओके, ओके सर। वेदांत। सर अगर हम NH3 के मोल्स निकालेंगे, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो हम इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब वो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है मतलब इक्विलिब्रियम इस टाइम के आने के बाद रिएक्शन रुक गया है। ओके, अब फिर आप किसी का भी कुछ भी मोल्स निकाले, अगर रिएक्शन रुक चुका है तो आपको रिएक्शन थोड़ा ही होगा। यस सर। So, so, हाँ, uh, so, like, अगर ऐसा, अगर कोई इक्वेशन लिखा है, so is there any way to find out if अगर chemical equilibrium है, like a reaction is in chemical equilibrium, is there any way to find out if it is static equilibrium or dynamic equilibrium? are always in dynamic equilibrium. They are never at static equilibrium. Chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. Okay. Okay, so. तो as we can see, equilibrium define करने के लिए हमें rate of reaction से वर्क करना पड़ेगा, and rate of reactions we are going to study in chapter of kinetics. तो अभी के लिए बस काइनेटिक्स से एक डेफिनेशन बोरो कर लेते हैं, and all of you write down law of mass action. This is the definition of kinetics for rate of reaction. So law of mass action, it states that rate of सर पिछला स्लाइड दिखाओ ना एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकंड सर। डन सर, थैंक यू। तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट जो, सपोज ये रिएक्शन A times A plus B times B going to C times C plus D times,
अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑन ए और बी, तो व्हाट इज दिस लॉ सेइंग? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be directly proportional to product of active masses of reactant. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है? फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं ए और बी। तो इनके एक्टिव मासेस, किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और अभी के लिए तुम एक्टिव मास को बस मोलैरिटी समझ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल लेटर। एक्टिव masses of reactant raised to their stoichiometric coefficient, and similarly rate of backward reaction क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है? सी और डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एक्टिव मास ऑफ C raised to C into active mass of D raised to D. So is law of mass action clear? यस सर। नोट करो जल्दी। यस सर। आर्यन बोलो। सर आपने कहा था कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है तो ये ए मोलारिटी टू द ए है, तो सर आपने टर्म क्या यूज किया था इसको डिस्क्राइब करने के लिए? एक्टिव मास। एक्टिव मास लिखा है ना ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। तो सर ये डिटरमाइन करते हैं कि अब इसको ऐसे इसी एग्जांपल पे वापस। अभी के लिए मान लो एक्टिव मास बस मोल है, ठीक है। अभी तुम इस वाले एग्जांपल में वापस समझो। एट T = 0 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा? rate of forward reaction molarity of n to the power 1 into so it will be 10 raised to 1. yes sir. 30 raised to 3. yes sir. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना होगा? 0. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। yes sir. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो फिर आगे जाएगा, मतलब अमोनिया के मोल्स बढ़ेंगे। अब ये आ गया अगले घंटे में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? 7 into 21 क्यूब। यस सर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन T = 0 से देखो कम हो गया। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब हो गया 6 स्क्वायर बढ़ गया। करेक्ट। लेकिन अभी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड से ज्यादा है। अच्छा। तो अभी भी आगे जाता जाएगा, और जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा अमोनिया के मोल्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो सर आप कहना चाहते हैं जब मोलारिटी ऑफ A raised to A into molarity of B raised to B equals molarity of C raised to C into D raised to D, तो तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। I think RF then becomes equal to RB. ये फंक्शनैलिटी है ना, भी एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। ओके। हेलो सर। हाँ सर, मतलब अभी एक्टिव मासेस को मोलारिटी मानने का है कि फिर जो आपने अभी बोला है ऐसे मोल्स लिख दे? 5 मिनट तो वेट करो। ओके सर। ये बता देंगे एक्टिव मास क्या होता है। So what we have got? So suppose I have any reaction A times A plus B times B. So rate of forward reaction is proportional to A raised to A, B raised to B, and we can write it as a equality. RF is equal to KF into A raised to A, B raised to B.
ठीक है, एंड सिमिलरली rate of backward reaction was C raised to C D raised to D, sorry, proportional to. So rate of backward reaction is equal to Kb into C raised to C D raised to D. So these Kf and Kb are called as rate constant of a reaction or velocity constant. Okay. And for a given reaction, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ Kf एंड Kb डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, सर हाँ तो सर इसमें हम लोग नॉर्मैलिटी और वो सब भी करेंगे? नहीं, नॉर्मैलिटी इसमें नहीं करेगा। अच्छा, तो वो कब पढ़ेंगे सर? वॉल्यूम जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, डोंट वेस्ट टाइम। चलो नोट करो इसको। सर डिपेंड ओनली ऑन टी। सर यहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर। हो गया, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। सुनाओ सर एक सेकंड रुको ना। जल्दी। सुनाओ। देखो इसमें इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया, अगर एक ग्राफ बनाए रेट वर्सेस टाइम का, तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का कुछ रेट था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल में, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 था स्टार्टिंग में। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन से, तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो रिएक्टेंट जो लिखते हैं वो कम होते जाएंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। करेक्ट? और प्रोडक्ट बनते जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो इवेंचुअली एक टाइम तो आएगा ना जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, एंड द मोमेंट दे बिकम इक्वल, अब ये हमेशा ही इक्वल रहेंगे। करेक्ट? नाउ दे विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। तो दिस इज इक्विलिब्रियम। और देखो ये भी हो सकता है स्टार्टिंग में हमने थोड़े अमोनिया डाल दिए होते, करेक्ट, तो ये ग्राफ कैसा बनता, तब स्टार्टिंग का आरबी 0 नहीं होता, तब ऐसे बनता, तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। ये भी हो सकता था हमने स्टार्टिंग में केवल अमोनिया डाला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं डाला, तो कैसा बनता ग्राफ, तब ऐसा बनता। ये रेट ऑफ बैकवर्ड होता, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड होता। क्लियर?
तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तुम स्टार्टिंग में कुछ भी डालो, केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालो, केवल अमोनिया डालो, तीनों डालो, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ओके सर ये ऐसे कम क्यों हो रहा है? वो क्या चीज कम क्यों हो रहा है? सर वो आरएफ का जो है और आरबी का बढ़ रहा है सर, जो फर्स्ट केस है। ज्यादा है आरबी से। इस पहले वाले ग्राफ में आरएफ स्टार्टिंग में ज्यादा है आरबी से। हाँ सर। तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यस सर। तो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास मोल्स कम होंगे। हाँ सर वो हाँ सर करेक्ट। रेट कम होगा। अच्छा वो रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे। ओके। So I didn't understand the graph. As reaction will move forward in first graph because rate of forward reaction is more than rate of backward reaction. So moles and active masses of reactants will decrease. So rate of forward reaction will decrease. Okay. फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में क्या फर्क है? क्या? फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में क्या फर्क है? सेकंड ग्राफ में हमने स्टार्टिंग में थोड़ा अमोनिया डाला है। स्टार्टिंग में अमोनिया को जीरो नहीं लिया है। अमोनिया और N2H2 तीनों है। क्या? अमोनिया के साथ साथ N2 भी है और H2 भी है। H2 अमोनिया तीनों डाले स्टार्टिंग में। अच्छा ओके सर। So एक सेकंड, मोल्स एंड एक्टिव मास डिक्रीज का इससे क्या रिलेशन है? हाँ? आपने कहा मोल्स एंड एक्टिव लाइक मास डिक्रीज होगा, तो उससे लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में क्या फर्क पड़ेगा? भाई यहाँ T इक्वल टू 0 में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? सम kf टाइम 10 into 30 क्यूब। यस। और फिर यहाँ पे कितना हो गया? kf into 7 into 21 क्यूब। यस। कम हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ। यहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 था। यहाँ पे कितना हो गया? kb into 6 स्क्वायर बढ़ गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है, बैकवर्ड का बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे वो इक्वल होंगे वहां इक्विलिब्रियम आ गया। ओह ओके। सर अब ग्राफ वाला पेज पे आ सकते। नोटेड सर। तो अब पहले तो एक्टिव मास क्या होते हैं बोले। So 1 second previously. सर 2 मिनट। देखो ये एक्टिव मास किसी भी स्पीशीज का क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन व्हिच कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन।
ओके, तो देखो रिएक्शन में हमें 4 तरीके के रिएक्टेंट मिलेंगे. We can have a solid reactant. We can have a liquid reactant. We can have a gas as a reactant. And we can have a solute in solution. चार तरीके के रिएक्टेंट मिलेंगे. अब जरा देखते हैं इनका एक्टिव मास कैसे. गैस से स्टार्ट करता हूं. तो किसी भी गैस का एक्टिव मास में क्या है. अब गैस मॉलिक्यूल, you know that intermolecular attractive forces are very less in gases. तो गैस मॉलिक्यूल में any one molecule is almost free of other molecule. करेक्ट. मतलब एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, उससे दूसरे मॉलिक्यूल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. They are far away from each other. They have negligible force of attraction. So for gases, I can say that every molecule is free to actively participate in the reaction. Every molecule is born, it can participate in the reaction. ठीक है. तो gases के लिए active mass कैसे देंगे? How we will give active mass for gases? सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. करेक्ट. तो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोलैरिटी. मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम. And N by V for gases is P by RT. So for gases, I can also take its active mass as its partial pressure. Okay. Sir, हाँ. so we won't multiply Na with moles. नहीं नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी ना वो सब के में जाएगा, तो हम लोग मोल से ही चलेंगे. ओके. Okay, sir. अब सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन क्या है, और मान लो सॉल्यूशन डाइल्यूट है. अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है. अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है तो एक सॉल्यूट पार्टिकल का दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है. करेक्ट. मींस एवरी सॉल्यूट पार्टिकल इज फ्री टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. करेक्ट. तो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इसका भी क्या हो गया, एक्टिव मास, मोलैरिटी. ये दोनों क्लियर है. Sir, how is fume is free? You're saying they have all molecules are free to react. How is that affecting active mass? No, I didn't get you. What you are asking? Sir, in even in gas, इसमें जो आप कह रहे थे कि सारे molecules free है react करने को. That's why molarity. I don't understand how you connected that. Just 1 minute. हाँ, क्या कह रहे हो? सर आई वाज सेइंग कि आपने गैस और सॉल्यूट दोनों में कहा था कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू रिएक्ट
That's why molarity. I didn't understand how you connected those points. भाई मुझे क्या चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब एक कंटेनर में यहाँ मेरे पास गैस है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम है, इसमें n मोल्स गैस है और हर मॉलिक्यूल फ्री है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। हाँ सर। तो क्या कंसंट्रेशन फ्री है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, n/v। ओके अंडरस्टूड सर, थैंक यू। यही से देखो, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। ये देखो, इफ आई टेक सॉल्यूट in a concentrated solution, तो concentrated solution में क्या होगा, now is every molecule free to participate in the reaction? No. क्योंकि अब No, sir. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, तो अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिएक्शन में जाने से रोकेंगे। Now every molecule is not free to participate in the reaction. So here active mass is definitely less than molarity. Okay? Yes, understood. Thank you. अब आते हैं, अब let's come to solid. In a solid, which molecules can participate in the reaction? Outermost. Surface molecule. Surface molecule. Correct? In a Yes, Yes, sir. sir. are not going to participate in the reaction. तो सपोज ये एक सॉलिड का ब्लॉक है, ठीक है, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका एक्टिव मास हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा बताओगे? सर outermost एरिया में जितने मोल्स है डिवाइड बाय एंटायर वॉल्यूम। मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया। यस सर। थोड़ी देर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये ब्लॉक आधा हो गया, तो कैन यू टेल मी इसका एक्टिव मास कैसे चेंज हुआ? हाफ, एक्टिव मास हाफ हो गया कि डबल हो गया? तो हाफ हो गया ना, टोटल सरफेस एरिया कम हो गया। हाफ हो गया। हाफ Ratio increases. सोच के आंसर दो जरा सब लोग। दूसरा पार्ट है या एक ही पार्ट है? हाफ ब्लॉक है। नहीं तो यार रिएक्ट होता जा रहा है तो ब्लॉक छोटा होता जाएगा ना। सर बढ़ जाएगा। Ratio of surface area to volume will increase. एरिया कम हो रहा है तो भाई क्या डिफाइन किया है, एक्टिव मास क्या है? इस यूनिट, एक यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सॉलिड आधा हो गया, कैसे चेंज हुआ एक्टिव मास? सर इंक्रीज होएगा ना? नहीं हुआ चेंज, तो इक्वल हो गया। अरे चेंज हाँ होगा, चेंज होगा, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों बदलेंगे? यस सर। एरिया चेंज होगा। समझ में आया ये बात? हाँ सर। नहीं सर, वो लास्ट पार्ट समझा सकते हो सर। एक सॉलिड है, ठीक है, यस सर। एक यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर इस सॉलिड के छोटा होने से बदलेगा थोड़े? So, नहीं but बदलेगा। won't we multiply surface area to find number of molecules? भाई what you have to find पर यूनिट एरिया, concentration, ठीक है। Okay, sir. कंसंट्रेशन क्या, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम? Got it, sir. गॉट इट। तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल नहीं रहे। तो सॉलिड के अभी बस इतना लिखते हैं कि सॉलिड का एक्टिव मास विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन।
एंड सेम अगर एक लिक्विड है, एक कंटेनर में लिक्विड है मान लो, जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैसे देंगे इसका एक्टिव मास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, Yes, sir. that will be proportional to its density. Yes, sir. अब लिक्विड मान लो आधा बचा, तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी? नहीं सर. नहीं। नो सर. तो सॉलिड और लिक्विड ये भी सेम रहेगा, सेम रहेगी। तो सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी इतना नोट करो इसको जल्दी। तो सर जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, तब हम सिर्फ गैस और सॉल्यूट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही देखेंगे ना सर? नहीं, ऐसे बोलो कि रेट ऑफ रिएक्शन will change only due to gas and solutes in dilute solution. Okay, it will only change, but the factor will be there of solid and liquid. Liquid reactants do not change the rate of reaction. Okay, तो सर अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें सॉलिड वो रिएक्ट करके एक सॉलिड इन एक्वस फॉर्म और कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो सर हम सिर्फ वो बेटा अभी कराते हैं सब, रुक जाओ, क्यों परेशान है? अभी बस डेफिनेशन सीखो। Sir, I didn't understand why we taking the number of molecules per unit surface area in a solid. Why don't we take the total number of molecules over the surface area? Why are we taking per unit surface area? Because your law of active mass की definition है कि active mass is molecular concentration. It is not total molecule. Molecules per unit area या पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए आपको, डेफिनेशन है वो, वही चीज रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर पाएगी। Okay, sir, I got it. सर यहाँ पे वो गैस को आइडियल मानना नेसेसरी नहीं है ना, वो ऐसे भी नेग्लिजिबल ही होगा ना? रियल होगा तो उसका भी, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो मैं उसका भी एक्टिव मास मोलैरिटी नहीं ले पाऊंगा। ओके सर। सर एक्टिव मास का कोई यूनिट नहीं है ना, मतलब अभी एक बार हमने मोलैरिटी लिखा है, एक बार पार्शियल प्रेशर लिखा है सर। मोलैरिटी और तो जब एक्टिव मास को मोलैरिटी लिखेंगे तो मोलैरिटी के यूनिट ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर के यूनिट ले लेंगे। ओके सर। सर वो गैस का वो पार्शियल प्रेशर कैसे है ना बेटा? गैस की मोलैरिटी क्या होगी? N/V। यस सर। N/V is P/RT। हाँ सर। और रिएक्शन में T तो कांस्टेंट रहता है, हाँ, RT कांस्टेंट है। यस सर। तो गैस के लिए मोलैरिटी को पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल, ओके सर, ओके। हेलो सर। हाँ सर लास्ट पॉइंट में वो एक्सप्लेन कर सकते हो, सॉलिड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो लेस देन मोलैरिटी कैसे आया? सॉल्यूशन मान लो यह एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स पड़े, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो अब ये वाला जैसे जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये वाला देखो, अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको चारों ओर से दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स ने घेर रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, मतलब वो डेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहेगी इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट बहुत ज्यादा है मतलब हर सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री नहीं है। ओके सर, यस सर, यस सर। चलो, so now if I proceed further, so what was the mathematical condition of equilibrium? Mathematical condition of equilibrium was RF, active mass of reactants raised to distortion to the same rate of that
So I can say kf into a raised to a, b raised to b should be equal to kb into c raised to c, d raised to d. कांस्टेंट को एक और ले आते हैं, वेरिएबल्स को एक और ले आते हैं। तो कांस्टेंट्स क्या क्या है इसमें? KF and KB. KF and KB. ये रिएक्शन चलने से KF और KB तो बदलेंगे नहीं, लेकिन रिएक्शन चलने से एक्टिव मास को बदलेंगे ABCD के, करेक्ट? Yes, sir. तो KF KB कांस्टेंट है, ABCD वेरिएबल्स है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं KF अपॉन KB, C raised to C, D raised to D by A raised to A, B raised to B. Correct? And this ratio KF upon KB we denote by capital, which is called as chemical equilibrium constant. ठीक है? तो अभी एक और चीज देखो, इस इक्वेशन में तुमने ये LHS में कांस्टेंट को रखा है, RHS में वेरिएबल्स को, करेक्ट? यस सर। और ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ABCD, इनके एक्टिव मास चेंज होंगे एज द रिएक्शन प्रोसीड। बट अगर सपोज ये मान लो एक सॉलिड रिएक्टेंट होता है, तो क्या इसका एक्टिव मास चेंज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। राइट इट इन RHS? नो, बिकॉज ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम इसी साइड LHS में ले जाके कांस्टेंट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लो, active mass of pure solids and pure liquids remain constant during a reaction and hence are taken as one in equilibrium expression. अगर यहाँ एक सॉलिड रिएक्टेंट होता तो हम A raised to A को 1 ले लें। देखो, आई एम नॉट सेइंग एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1, ये कई लोग मिसकंसेप्ट या कई बुक्स में ऐसे लिख देते हैं। एक्टिव मास सॉलिड का 1 नहीं होता है, एक्टिव मास सॉलिड का एक कांस्टेंट होता है। तो उस कांस्टेंट नंबर को हम KF by KB में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और RHS में इक्वेशन के 1 लिखते हैं उसकी जगह। ओके, तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास हम लोग 1 लेंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो K में इंक्लूडेड होती है। Is this much clear? Yes. Yes sir. Yes. सर आप प्रीवियस पेज का स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर सकते हो रही? कौन सा सर? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया सर। एक बार चलो एक चीज आज और कर लेते हैं जल्दी से। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो। वेदांत ग्रुप पे आ गया है, स्क्रीनशॉट प्लीज। चलो क्योंकि ये चीज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सपोज एक ये रिएक्शन है, A times A plus B times B going to C times C plus D times C. Now we will write its equilibrium constant, C raised to C, D raised to D by A raised to A, B raised to B। ठीक है? अब सपोज मैं ऐसे लिखूं,
CD को लेफ्ट साइड में लिखूं, AB को राइट साइड में, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? A raised to A, B raised to B upon C raised to C, D raised to D, which is nothing but 1/2. तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि if you reverse a reaction, its equilibrium constant gets reciprocated. Correct? If we reverse a reaction, equilibrium constant gets reciprocated. Yes sir, noted. सर हाँ बोलो। तो आपने जो पहले के जो 3 ग्राफ बनाए थे उसमें फर्स्ट और जो थर्ड ग्राफ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा होएगा ना, मतलब रेसिप्रोकल होएगा ना? नहीं बेटा, उसमें देखो तुम दो चीज से कंफ्यूज हुए। फर्स्ट और थर्ड ग्राफ का डिफरेंस उस समय ये था कि मैंने इनिशियली 1030 लिया है या इनिशियली 0020 लिया है, समझे? रिएक्शन मैं दोनों केस में ऐसे ही लिख रहा हूं। दोनों केस में मैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोइंग टू अमोनिया को ही फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहा हूं। ओके ओके, आपने बोला था सॉलिड तो लिक्विड्स के लिए 1 होता है, तो KF/KB 1 होता है क्या? अगर सब सॉलिड और लिक्विड हो गए तो KF और KB KF/KB 1 हो जाएगा। ओके सर। BCD सब सॉलिड है। यस सर। सर हमेशा K का वैल्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का ही आना चाहिए ना सर? राइट साइड बाय लेफ्ट साइड। हाँ वही, ओके। सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? If we reverse a reaction, its equilibrium constant gets reciprocated. ठीक है? हाँ सर। सेकेंड प्रॉपर्टी सिमिलरली, मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, क्या होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ C इंटू डी बाय A इंटू डी। ठीक है? अब मान लो इस पूरी रिएक्शन में हम एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे लिख लो Ma प्लस Mb गोज टू Mc प्लस Mb। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? C raised to M B raised to M by A raised to N B raised to N, that is K raised to N. So if I multiply by some number in a reaction, equilibrium constant is raised to that power. So for example, अगर ये रिएक्शन है N2 plus 3H2 going to 2NH2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा बताओ? रूट के। रूट के। ठीक है? यस। हो गया नोट ये? सर एक मिनट सर। सर एक So I'm not able to understand how K will be a constant. Why? So because KF and KB will be changing, right? So and KB change only with temperature. oh okay, yes sir, sorry, I confused it with RF. And third property,
मान लो we have a reaction A plus B goes to C, C plus B goes to E. इसका equilibrium constant will be active mass of C by A into B. इसका equilibrium constant C upon C into D. If I add these two reactions, I get this reaction, whose equilibrium constant will be active mass of C upon A into B into D, which is K1 into K2. So if we add two reactions, their equilibrium constants get multiplied. So one second, previous slide, please. तो स्लाइड में सारी भेज ही रहा हूँ ग्रुप पे। ओके सर हाँ सर वो MBMC वाला है, उसका स्टेटमेंट आप रिपीट कर सकते हो एक बार? स्टेटमेंट क्या होगा उसका? If we multiply a number in a reaction, equilibrium constant is raised to that power. ओके सर। और सर जो लेटेस्ट वाला आपने किया उसका बस यही होगा ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक वही ना? हाँ, add in ओके सर। reaction, they will get multiplied. सर आप 2 पेज पीछे जा सकते हैं सर, एक सेकंड के लिए। ओके सर, थैंक यू। चलो बाय एवरीबॉडी। सर बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। सर बस एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो ग्लेशियर को हमने पानी के ऊपर क्यों लिया? थोड़ा पानी के नीचे रहेगा ना, मतलब वो बस मेरे को नहीं समझ में आया। सुनो, पहले तो सिर्फ पानी था, ठीक है? यस सर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने लगा तो पानी फ्रीज होने लगा। यस सर। तो वो पानी के ऊपर ही बन रहा है ना, फ्रीज हो तो पानी फ्रीज हुआ है। ओके सर। ग्लेशियर वर्ड हटा दो, वहां से आइसबर्ग कर लो। हाँ मतलब ओके सर। Hello, sir. So I have one doubt. Sir, you wrote a statement of law of mass action. Sir, will we prove this? Prove it in further classes, or we have to remember that? वो तो याद करना ही, but that was a part of chemical kinetics. Okay. Okay, sir. Sir, can you explain the active mass concentration part again? Active mass is that many number of molecules per unit area which can participate in a reaction. भाई हर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है रिएक्शन में। जैसे एक सॉलिड है, तो सॉलिड के सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके? Can you explain that in the dilute solution and concentrated solution? Solute particles are far away from each other. Yes. So every particle is free to react. Right. In concentrated solution, many particles are making a group. Okay. So every particle is not free. So number of available particles will be less than number of total particles. And so can you explain about that molarity and the partial pressure part for the gas? Molarity is moles per unit volume. Gases में तो हर molecule free है react करने के। Yes. तो concentration क्या हो गई molecule की? Moles per unit volume. Yes. That is molarity. And for gases, molarity is proportional to partial pressure. Yes.
So you can take it as partial pressure also. Okay. सर हाँ सर आप ये हफ्ते एमसीएक्स सर को बोल सकते हैं कि बुकलेट डाउट्स किस वजह वो रैंडम डाउट्स लेने बुक से। बुक पे अभी जब क्लासरूम बन जाएगा क्लासरूम पे देखो डाउट से तो कैसे लेक्चर रखना है एमसीएस सर का या और मेरा रखना, वी विल डिसाइड ऑन क्लास। तो सर अभी डाउट गूगल क्लासरूम पे पूछे क्या हैं? अभी से डाउट्स व्हाट्सएप ग्रुप के सिवाय के बजाय गूगल क्लासरूम पे पूछे क्या? क्लासरूम में आई विल तो एटलीस्ट आई कैन आंसर। अच्छा ओके सर, ओके थैंक यू सर किधर भी डाल सकते हैं ना सर, दोनों में से। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे दिखते नहीं है, तुम लोग उसके बाद इसमें मैसेज डाल देते हो तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड द एक्चुअल डाउट क्या था और सॉल्व हो गया है कि नहीं हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। थर्मोडायनेमिक्स में बस एक पार्ट समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कब ds को, एंट्रोपी चेंज को हम लोग dh/t कब लिख सकते हैं, मतलब कब हम लोग एंट्रोपी चेंज को ΔH/T लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन हो जब इक्विलिब्रियम पे तब। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन था बुकलेट में द एरिया अंडर अ प्लॉट ऑफ Cp/T वर्सेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो उसको मैंने से आया Cp dt is dq। Cp dt is dq। हाँ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है ना वो। सर कांस्टेंट प्रेशर कहाँ से आया यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर दिया है प्रॉब्लम में, देखो प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो। Area under the plot of Cp/T versus the absolute temperature is directly related to, कितना लिखा है भाई? Cp dt को आई कैन राइट dq, कौन सा प्रॉब्लम था? तो चलो डाउट डिस्कशन में करेंगे उसको। ओके ओके सर।